Hello, my dear class 9th. Today we are going to do chapter number 3 of class 9th, which is tissues in action. पुरानी book के हिसाब से just tissues. Now we all must be knowing that tissues is a very very difficult chapter. समझना बहुत मुश्किल है because there is a lot of theory, but I am going to be teaching you this chapter in a very very easy manner. क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को कन्वर्ट करने वाली हूँ टैबुलर फॉर्म में, एंड एवरीवन नोज कि टैबुलर फॉर्म में चीजें अंडरस्टैंड करना इज वे मोर इजी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, tissues is nothing but group of cells. Okay, so first of all we are going to do plant tissues, and सबसे पहले हम बनाएंगे एक mind map. Why? Because mind map makes everything a lot easier to understand. ठीक है, आ जाइए. So plant tissue का सबसे पहला categorization है meristematic tissue, meristematic and permanent. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is further divided into many categories. For example, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, and intercalary meristematic tissue. This empty means meristematic tissue. Okay, so in the permanent, here we come. First is simple permanent. Simple permanent. On the second hand, we have complex permanent. Complex permanent. In the simple permanent, we have two categorization. We are going to club both of them actually. This is protective and supportive. And this protective and supportive are categorized into three parts. First is parenchyma. Then we have collenchyma. Lastly, we have sclerenchyma. Now, coming up on the last one, complex permanent have two different types. First is xylem, then we have phloem. Easy, ठीक है. चलो थोड़ा सा इनका करते हैं हम गो थ्रू, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे टैबुलर फॉर्म में हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे सो दैट कि रिवाइज करना आसान हो जाए. फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. प्लीज सी हियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप ऐसे कंसिडर कीजिए जैसे कि ये वो टिश्यूज हैं जो कि अभी अभी नए नए टिश्यूज बने हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में कोई नया नया बंदा हायर किया जाता है, कैसा होता है वो बंदा? फ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी, सारे काम कर सकता है, सारे रूप बदल सकता है अपने. मतलब कि इट्स लाइक द न्यू फ्रेश सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द प्लांट. कैसे होंगे ये? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बिग साइज्ड न्यूक्लियस, प्रोएक्टिव इन नेचर, and they are like they can change their shape, size, structure anytime. They can perform multiple functions at the same time. Along with that, they have a very prominent habit of continuously keep on dividing. बार बार डिवाइड होते रहेंगे. क्यों? क्योंकि they are present at the growing regions of the plant. प्लांट के हर उस जगह पर प्रेजेंट है जहां जहां पे ग्रोथ हो रही है. ठीक है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे हैं? They have the ability to divide. They have thick dense cytoplasm, big sized nucleus. They have very thin cell wall. They can change their shape, structure and size. They can perform multiple functions. They are present only at the growing regions. They are like very much into making new parts of the plants. Got my point? That is how we have meristematic tissues. Then on the other hand, consider permanent tissues as the older ones. जैसे किसी ऑफिस में सबसे सीनियर बंदा एक ही काम करेगा, एक ही जगह पे बैठेगा, एक ही उसका पर्टिकुलर शेप साइज स्ट्रक्चर होगा, डिवाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव ऑन परमानेंट टिश्यूज? परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वन. दैट इज व्हाई परमानेंट टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन. क्योंकि ग्रो करने के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है. अगर सेल डिवाइड ही नहीं हो सकता तो ग्रो करेगा ही नहीं. So permanent tissues का क्या है? They have lost their ability to divide. They have thick cell wall. They have less cytoplasm. They have small nucleus. They are not present at the growing regions. They cannot change their shape, size, and structure. They have a fixed function. This is how you are going to categorize the the meristematic tissues and the permanent tissues.
अब कैसे करेंगे हम? आई होप आप सभी ने ये बना लिया है, करेक्ट? प्लीज मेक इट. इन द मीनवाइल, let's give the next heading. So this was our mind map to understand how we have categorized the plant tissues. Now we are going to understand how to learn their characteristics, क्योंकि इनके characteristics इतने confusing हो जाते हैं, इस वजह से इन्हें mind map के tabular form में learn करना easy रहता है. So first side we have meristematic, second side we have permanent. अब मैं आपको एक के ही पॉइंट्स लिख के बताऊंगी, सेकंड के आप खुद लिखेंगे. दैट इज काइंड ऑफ योर टेस्ट. सो प्रेजेंट एट ग्रोइंग रीजन्स. फर्स्ट. नंबर सेकंड, हैव एबिलिटी टू डिवाइड. दे कैन इजीली डिवाइड. यस. Perform multiple functions. Change shape, size, structure. Have thin cell wall. Dense cytoplasm and big nucleus. Next, what are next? They are always living. हमेशा living cells होंगे, ये कभी भी dead नहीं होंगे. Always living cells. They are not at all dead cells. Okay, please remember this. So what do we have here? They are present at the growing regions. Check. They have ability to divide. Yes. They can perform multiple functions. They can change their shape, size, and structure anytime. They have thin cell wall, dense cytoplasm, big nucleus. They are always living cells. And there is no intercellular spaces. No intercellular spaces. ठीक है. अब आपको इसका ऑपोजिट यूज करना है परमानेंट टिश्यू में. कैसे? They are not present at the growing region. They have lost their ability to divide. They can perform only single function. They cannot change their shape, size, and structure. They have thick cell wall with less cytoplasm and small nucleus. They can be living or dead. And last, they have some sort of, मतलब intercellular spaces is still debatable. ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यू कैन राइट एनीथिंग. गॉट माय पॉइंट टिल हियर? अब आगे आ जाओ. चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं. अब हमने कर लिया है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच का डिफरेंस. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर व्हिच आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. प्लीज अंडरस्टैंड, एक जर्नी होती है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है. द जर्नी of conversion or the process of conversion of meristematic tissues into permanent tissues is called differentiation. There is a differentiation process when the meristematic tissue gets converted into permanent tissues, and this is when the cell actually loses all its ability of division or performing multiple functions, etc. So that is the process which we call as differentiation. अब आ जाओ नेक्स्ट. सो अब हमने क्या किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट का डिफरेंस कर लिया. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर 3 जो हमने बनाए हैं उनको अच्छे से समझते हैं. ठीक है. सो व्हाट डू वी हैव? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 कैटेगराइजेशन है, तीनों को ले आओ. एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. ठीक है. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप. प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. मतलब कि ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि प्लांट के सबसे ऊपर और सबसे नीचे प्रेजेंट है. क्यों? बिकॉज इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ प्लांट. इंक्रीजेस द हाइट ऑफ प्लांट. प्लांट की लंबाई इंक्रीज करने में यूजफुल है. दैट इज व्हाई ये टिप ऑफ रूट एंड शूट पे प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ. प्लीज अंडरस्टैंड कि हाइट को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बुलाते हैं.
सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब मैं अगर डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश करूं, सपोज करो ये हमारा एक प्लांट है, ये इस प्लांट की टिप है, इस टिप पर प्रेजेंट है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इस टिप पर प्रेजेंट रहेगा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे प्लांट की हाइट इंक्रीज करनी है, गॉट माय पॉइंट। एंड सिंस हाइट इंक्रीज करने को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बुलाते हैं, सो यू आर सपोज्ड टू मेंशन दिस पॉइंट आल्सो। नाउ लेट्स कम ऑन लेटरल। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ साइड्स में प्रेजेंट है, क्योंकि इसको प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज करनी है, दिस इज अवर लेटरल। एट दी साइड्स ऑफ प्लांट, प्लांट की साइड्स पे प्रेजेंट है। नंबर सेकेंड, इंक्रीजेस गर्थ, गर्थ का मतलब है चौड़ाई, इंक्रीजेस दी गर्थ ऑफ प्लांट। एंड यूजुअली साइड्स में हम लोग स्टेम साइड में मेंशन कर देना, इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड नंबर सेकेंड, क्योंकि हम चौड़ाई को बुलाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ लाता है ये टिश्यू प्लांट में, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई इंक्रीज करना इज लाइक सेकेंडरी ग्रोथ करना, गॉट माय पॉइंट। नाउ वी हैव इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स हियर, intercalary. Intercalary is the tissue which is present at the internodes and is responsible for increasing or formation of new branches. Got my point? So अब यहाँ पे intercalary क्या है? Present at internodes, forms new branches, forms new branches. So these 2 points are there in intercalary tissues. Please see here very nicely one more time. Apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, intercalary meristematic tissue. Apical में क्या है? It is present at the tip of root and shoot. That is why it is responsible for increasing the height of the plant. And increasing the height of plant is also called primary growth. Got my point? Lateral meristematic tissue is present at the sides of the plant and is responsible for increasing the girth of the plant. In term, we can also say it increases the secondary growth. Last one, intercalary meristematic tissue is present at the internodes and is responsible for the formation of new branches. Got my point? तो अब हमने ये 3 और कर लिए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। आ जाओ जरा परमानेंट वाले करते हैं अब। परमानेंट में अब हमारे पास है सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमारे पास आएगा सबसे पहले प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। पॉज करके नोट डाउन करते रहना। अगर आपने एक बार ये सारे नोट्स कंप्लीटली लिख लिए, अच्छे से लर्न कर लिया, आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉट माय पॉइंट? चलो आ जाओ प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव पे आ जाते हैं। परमानेंट, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव। आ जाओ, इनके बीच में भी लगा लो लाइन। चलो, प्रोटेक्टिव मतलब अब देखो नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना मतलब कि इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। गॉट माय पॉइंट? अंदर से रह के तो क्या ही प्रोटेक्ट करेगा, सो इट हैज टू बी ऑन द आउटर सरफेस। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज मतलब कि बाहरी सतह पर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो कहलाएंगी प्रोटेक्टिव टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एपिडर्मिस। चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, अब बाहर की सबसे बाहर वाली जो सतह है वो कहलाती है एपिडर्मिस। इवन तुम्हारे हाथों का जो बाहर वाला हिस्सा है, तुम्हारी पूरी बॉडी का जो बाहर वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट हमारे पास है एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या करता है? ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्लाइमेट, टेम्परेचर, पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा, सबसे प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। कुछ भी चीज प्लांट के अंदर एंटर हो नहीं पाती जब तक वो एपिडर्मिस को क्रॉस नहीं करती। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन अ प्लांट। नंबर सेकंड एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इज क्यूटिन, which forms cuticle. What is cuticle? Have you seen? कभी भी जब एक नया बेबी पत्ता पैदा होता है किसी भी प्लांट में, वो पत्ता ऊपर से बड़ा चिकना चिकना सा होता है, वैक्सी कोटिंग के साथ पैदा होता है वो। दैट वैक्सी कोटिंग इज नथिंग बट क्यूटिकल। दैट वैक्सी कोटिंग
इज क्यूटिकल। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वैक्सी कोटिंग का फंक्शन क्या होता है। प्लीज ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन पक्का आता है 1 नंबर के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल? प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक पत्ता होता है, अगर वो गर्मी में रहे तो उसके ऊपर एक स्टोमाटा नाम का पोर होता है, माइन्यूट पोर कॉल्ड स्टोमाटा। वो स्टोमाटा से वाटर लॉस हो सकता है क्योंकि वो एक ओपनिंग है, होल है वो। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज, if the climate is too hot, then the plant might lose a lot of water, and to prevent the loss of that water, the plant has a waxy coating over its surface, and that waxy coating is responsible for preventing the plant from losing excessive water. Got my point? एंड वो वाटर के एक्सचेंज को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसपिरेशन। आई एम गोइंग टू राइट द एंटायर थिंग हियर। वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट्स water loss through stomata by the process of transpiration. By the process of transpiration, please double underline transpiration and stomata. ठीक है, this is our second one. And here you must know that these are the protective tissues which are present on the outermost layer, which are going to protect the tissue from like कोई भी बाहर से hurdle आ जाए, anything. Got my point? Then we have supportive tissue. Supportive tissue क्या होता है? अब ये है अंदर, ये वो टिश्यूज हैं जो टिश्यूज एक्सट्रीमली हार्ड हैं, जैसे कॉर्क सेल्स। ये क्या कर रहे हैं, एक प्लांट या ट्री अगर सीधा खड़ा है तो उसके खड़े होने में कोई तो सपोर्ट उसे चाहिए होगी ना, वो सपोर्ट जो टिश्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव टिश्यूज। अब इसमें हम कॉर्क लिख सकते हैं, ये कोई एज एन डिफरेंस बिटवीन नहीं है। कॉर्क सेल्स, ये कॉर्क सेल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टिफ होते हैं, दे हेल्प द प्लांट टू स्टे रिजिड एंड स्ट्रेट all throughout the season. That is why they are called supportive tissues. All supportive tissues are mechanical in nature. They are very hard. That is why they provide support to the plant. Got my point? यहाँ तक clear है? अब आ जाओ जरा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने प्रोटेक्टिव सपोर्टिव देख लिया। अब हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, विच इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, या नेक्स्ट क्लास में। चलो लेट्स डू दिस थिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग the categorizations of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, all 3, because it is extremely important, always comes for 3 marks. Along with that, we will be doing complex permanent tissues, which is xylem and phloem, and you know in your class you have a lot of categorization and parts, components of xylem and phloem. So we'll be doing that. Apart from that, we will start animal tissues. Bye bye.